Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are at the verge of completing the Queues module in the working with the orchestrator chapter in the studio, okay, in the academy. And today's video we're gonna practice some data questions over there in the queue. So कुछ questions हम practice करने वाले हैं जो हमें academy में दे रखे हैं. Let's get started guys. Okay, चलिए. So as you can see we are in the module and यहाँ है practice 2 using queues. So what this problem statement does, let's see. You're asked with automating the process of inserting account details into the Acme Bank web page. The information for these accounts is stored in an Excel file. So I'll just tell you as is process. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे मैं पूरा बताऊंगा. This is a वेबसाइट ओवर, ये वेबसाइट है, इसके अंदर मुझे डेटा को क्या करना है, आई हैव टू एंटर द डेटा इनसाइड द वेबसाइट ओवर देयर. ठीक है, चलिए. I have to enter the data inside the website over there as well. Bank add account, I have to enter the data inside the website. So the data is available inside the Excel sheet. Data कहाँ है आपका? Excel sheet के अंदर available है. यहाँ पे हमारे पास एक sheet है called account information. I'll just download it. ये है. Open it. Yeah. So you can see we have all this data 1 2 3 4 5. We have 5 transactions over here. This is a transaction, this is a transaction, ये एक ट्रांजेक्शन है, ये एक ट्रांजेक्शन है, ये है ट्रांजेक्शन. वी हैव 5 ट्रांजेक्शंस. ठीक है, हमें ये डेटा को इंसर्ट करना है उस वेबसाइट के अंदर. आप सोच रहे हैं कि बहुत इजी है, एक्सेल क्रिएट कर हो जाएगा, पर नहीं, इजी है, हम उसको बनाएंगे, बट विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ परफॉर्मर एंड अ डिस्पैचर और परफॉर्मर मॉडल देयर इन द UiPath स्टूडियो. हाउ विल डू इट, लेट्स सी. तो इसमें हमें क्या करना है, बिल्ड अ डिस्पैचर और अ प्रोड्यूसर दैट adds each row in the input as a queue item into the orchestrator queue. But what it will be doing, it will be reading this Excel, it will be adding 1 2 3 4 5 transaction data inside the queues. ठीक है, this will be a dispatcher. मैंने आपको बताया था गाइस dispatcher क्या होता है. It is adding the data inside the queue, or in technical terms you can say populating the data inside the queue. ठीक है, चलिए. So and then we have to build a performer that will be getting the each queue item and enters the data inside the Acme web page. So there will be 2 workflows over there in our process. ठीक है, ensure that in case of a system exception, ठीक है, the performer retries a queue item twice before abandoning it. तो हमें auto retry function जो मैंने लास्ट में बताया था आपको, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वो भी इसमें अप्लाई होगा. ठीक है, एंश्योर द करेक्ट स्टेटसेस आर सेट इन द ट्रांजैक्शंस इन द ऑर्केस्ट्रेटर. हमें सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. इंक्लूड अ मैकेनिज्म टू टर्मिनेट द प्रोसेस सेफली. वी विल सी टू इट. पब्लिश द परफॉर्मर प्रोसेस एंड रन अ फ्यू जॉब्स. तो दिस इज द होल एजेंडा ऑफ दिस होल ऑटोमेशन. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. वी विल बी यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ओवर देयर. ठीक है, चलिए. दिस इज अ वेबसाइट, इसको बाद में आते हैं. फर्स्ट क्विकली गो टू द स्टूडियो. आई विल से चैप्टर 98. I'll say dispatcher. ठीक है, ये मेरा dispatcher प्रोसेस है. एंड I'll say Acme बैंक dispatcher. ठीक है, चलिए क्विकली जब तक ये बन रहा है, I'll be just opening this dashboard and we'll be going to the orchestrator so that I can create a queue and configure my queue properly. ठीक है, चलिए. ओपन. तो ये मेरे डेव फोल्डर है. यहाँ पे मेरे पास 2 क्यू पहले से अवेलेबल है. आई क्विकली डिलीट दीज 2 बिकॉज दीज वर द डेमो क्यू दैट वी वर यूजिंग इन द लास्ट सेशन, राइट. सो डेमो 1 विल बी डिलीटेड. एड a queue, create a new queue. I'll say Acme like this. एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेल्ड आइटम्स के लिए मुझे क्या है, 2 टाइम इसको मिनिमम रिट्राई कराना है जब तक ये उसको अबैंडन नहीं करेगा तब तक. ठीक है, जब ये अबैंडन करेगा उसके बाद, तो माय बैड. ठीक है, 2 टाइम्स मुझे रिट्राई कराना है, उसके बाद ही जाके इसको अबैंडन करेगा. तो आई विल जस्ट ऐड इट. गॉट इट. यहाँ मेरे पास एक्मे क्यू है. वी हैड नॉट एनफोर्सिंग एनी रेफरेंसेस ओवर द यूनिक रेफरेंसेस बिकॉज वी डोंट नीड इट राइट नाउ. ठीक है, तो वी हैव टू क्रिएट अ सिस्टम एक्सेप्शन एज वेल. चेक. अगर आपको सिस्टम एक्सेप्शन होता है तो वो ऑटोमेटिक 2 बार रिट्राई करेगा, जो कि मैंने आपको बताया है. ठीक है, चलिए. सो ये मेरा मेन सीक्वेंस है. नाउ फॉर द डिस्पैचर पार्ट आई विल जस्ट रीड एन एक्सेल प्रोसेस स्कोप, यूज एक्सेल फाइल. यहाँ पे आएगा मेरा रीड range. So I'll be reading the range over there of the Excel, storing it in the data table and
pushing a data table inside the queue one by one with the for each loop. ठीक है, चलिए तो I'll be indicating the this part, downloads, account information, this part, and I hope the sheet name is sheet 1. Yes, it is. Excel dot sheet dot range, and let's see it to empty. ठीक है, इसको I'll be using the best practice to raw value where it is faster. DT input is our variable which is holding the data type. ठीक है, चलिए मेरा एक्सेल फाइल रीड हो गई यहाँ पे. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई हैव टू iterate through the excel, iterate through the rows, add each row inside the queue as a transaction. How I will do it, let's see. यहाँ पे I'll just use a for each row in a data table. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम अलग बना लेते हैं just to make things neater and cleaner. ठीक है, तो I'll just do like this for each row in the data table, right? So the collection over here is dt underscore input. यहाँ dt underscore input आ गया है. I think I used for each, गलती से मैंने for each use कर लिया है. I have to use for each row in the data table. Yeah, so it is specifically tailored for data table only. Row, ठीक है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं. द स्टार्टिंग इंडेक्स विल बी 0. ठीक है, चलिए यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज एन एक्टिविटी. सबको पता है कौन सी एक्टिविटी है, इट इज ऐड क्यू आइटम ओवर देयर. ठीक है, आई विल बी नेविगेटिंग टू माय मॉडर्न फोल्डर डेवलपमेंट डेव टू माय क्यू एंड द आइटम इंफॉर्मेशन विल बी एडेड नाउ. नाउ आई विल जस्ट ऐड फर्स्ट नेम. ठीक है, तो इट विल बी रो, माय बैड, रो फर्स्ट नेम डॉट टू स्ट्रिंग. ये मैंने कहां से लिया है, ये मैंने यहां से लिया, इस कॉलम का नेम लिया. ठीक है, तो ऐसी गाइस मुझे क्या है, इन सब के सब कॉलम्स का कॉलम नेम लिखना है एंड देन आई विल हैव टू ऐड द कॉलम नेम इनसाइड द कलेक्शन. इट विल बी पुशिंग डेटा इनसाइड द. आई नो कि आपको पता है ये एक्टिविटी कैसे काम करती है, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया है. तो आई विल बी बैक, मैं सब डेटा ऐड कर लेता हूं, देन आई विल बी रिज्यूमिंग द वीडियो ओवर देयर. लेट्स सी यू इन अ सेकंड. So guys, I have added all these 7 columns side of it. ये मेरे 7 column के name हैं, that is first name, last name, city, phone number, email, age and dependents. यहाँ मैंने एक चेंज किया हुआ है, मैं बताता हूँ क्या. यहाँ पे कॉलम नेम सिटी था, यहाँ पे सेम है, बट टू जस्ट टू बी मेक इट मोर इजी रेफरेंस मैंने यहाँ पे सिटी लिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने ले रखा था सिटी स्टेट जिप. तो आई डोंट वांट अ लॉन्गर नेम इनसाइड माय कॉलम, आई जस्ट वांट अ शॉर्ट नेम. तो सिटी स्टेट जिप विल बी द नेम फॉर मी इन दिस प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा. यहाँ अगर आप एक भी चीज गड़बड़ करोगे तो इट विल बी डायरेक्टली थ्रोइंग यू एन एरर ओवर देयर. ठीक है, दैट दिस कॉलम इज नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं एंड व्हेन आई विल रन माय प्रोसेस तो इट विल बी एडिंग द डेटा इनसाइड द क्यू और पॉपुलेटिंग द क्यू ओवर देयर. ठीक है, चलिए डिबग. तो दिस इज अ डिस्पैचर सीक्वेंस. ठीक है, ये कर रहा है, ये सीक्वेंस आपके डेटा को ऐड कर रहा है क्यू में, सो दैट द परफॉर्मर कैन पिक द डेटा करेक्टली व्हेन इट इज रनिंग. और ओपन, ओके, अच्छा, सॉरी, माय बैड. नहीं मैं कहूँ बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सेल फाइल एंड इट्स नॉट, इज थ्रोइंग एन एरर. ये कैसे हो सकता है, इसमें एक इशू होता है, मैं बताता हूँ क्या. जब भी आप यहाँ से क्लिक करके रहते हो ना तो वो नहीं चलेगा, इट विल बी थ्रोइंग दिस एरर. देखिए, you are not editing a value, please check that we are not editing a value and that no dialog windows are open. So you don't have to, you can open the excel but you don't have to like be doing something inside the excel. जैसे कोई छोड़ नहीं सकते उसको ब्लिंक कर्सर पे यहाँ पे, तो it will be throwing an error होते हैं. ठीक है, चलिए. सो इसका ये फायदा होता है कि आपको अगर स्कोप का, इफ यू रीडिंग द एक्सेल विद इन स्कोप, क्लासिक, मॉडर्न, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट यू कैन ओपन द एक्सेल एंड द वर्क शुड बी विजिबल व्हेनेवर यू आर समथिंग अपेंडिंग डेटा इनसाइड द एक्सेल एज वेल. ठीक है, चलिए ये मेरा हो गया है डन. इट आल्सो रन क्विकली. चेक इनसाइड द में क्यू डेटा वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है. 1 2 3 4 5, तो वी हैव 5 रोज ऑफ डेटा अवेलेबल. फीफो की तरह से काम करेगा ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मैंने आपको बताया था एवरीथिंग इज देयर एज वी हैव एक्सपेक्टेड इट टू बी. ठीक है, मेरी क्यू रेडी है बनके. चलिए अब लेट्स गो टू द अनदर वर्कफ्लो. आई विल बी डूइंग एन अनदर वर्कफ्लो ओवर देयर एंड इसका लेंगे चैप्टर 98
परफॉर्मर, ठीक है, एक्मे बैंक परफॉर्मर, ठीक है, चलिए क्रिएट। सो नाउ व्हाट, इट्स वेरी इजी गाइस, बट थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, we have to publish the process and they are expecting us to handle the exceptions as well over there. Publish the process and run a few jobs. If it's, you know, अगर आप थोड़ा सा get the solution तक है क्लिक करोगे आपको आंसर मिलेगा, but we are not seeing that. Few important things to look after, they have said it. You need to create a queue, ठीक है, everything is done. For the performer in a new sequence, get the transaction item. If there are no more transactions, terminate the workflow. If there are transactions to process, assign the values from the transaction. हाँ ठीक है. In the main, हाँ, implement the logic to safely terminate the process. Additionally, make sure you count each time a transaction has been processed. Give it a go. Publish the performer to run some jobs. तो यहाँ पे क्या है? We have to run the job through the orchestrator. Orchestrator से मुझे जॉब को रन करना है. Don't have to run it through the studio. Studio आपसे डेवलप करते हैं. We are developers, so we'll be developing the automation from the studio, but we'll be publishing it inside the orchestrator and we'll be running the jobs from there. ठीक है, चलिए. So ये है 1 2 3 5 rows are there going inside the main part. यहाँ पे I'll be what doing? I'll be just creating another sequence. I'll be saying filling, or I can say प्रोसेसिंग डेटा करके मैंने एग्जाम्पल बना दिया है यहाँ पे. इनसाइड ऑफ दिस आई विल बी डूइंग एवरीथिंग ओवर देयर. ठीक है, यहाँ पे वी हैव टू ऑप्शंस. हम फ्लो चार्ट से भी कर सकते हैं इसको, फ्लो चार्ट से ही करेंगे वैसे हम बाय द वे, बिकॉज वी कांट यूज अ लूप ओवर देयर. तो इट्स बेटर टू हैव अ फ्लो चार्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मेनी डिसीजन पॉइंट्स एज वेल. द ब्यूटी ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स. ठीक है, अगर कुछ होगा यस, नहीं तो नो, सिंपल एज इट इज. I'll be discussing flowcharts everything in the next chapter. Next chapter उसी का है, the types of transactions आप चेक कर सकते हैं inside the academy as well. चलिए, without any further ado, let's continue this. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पे क्यों आ गया है. तो what I can do, I can just get the transaction also from there. मुझे get करना है transaction queue से. तो how I'll do it, everybody knows the activity get tran item. मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं फ्लो चार्ट भी डाल सकता है डायरेक्टली मेन में ही. फ्लो चार्ट को बना के मेन में बनाएंगे, गेट ट्रान को मेन में रख के आई कैन डू दैट. बट ठीक है, it's way more, you know, cleaner. The code should be cleaner. ठीक है, orchestrator folder path dev q is acme. Obviously it will be throwing an item over there, so item name will be tran item of type q item. ठीक है, tran item मेरा item type है, यहाँ पे variable है, and it is now procuring the items from the queue. एक आइटम मुझे देगा, एक आइटम देगा, एटॉमिक आइटम देगा, एक आइटम, ये एक बार में एक आइटम देगा. ठीक है, इट्स नॉट लाइक इट विल बी थ्रोइंग ऑल द आइटम्स ओवर देयर. नो, इट्स नॉट द गेट क्यू आइटम्स एंड ऑल. ठीक है, वो एक्टिविटी नहीं है, सिंगल आइटम देगा, इसके ऊपर प्रोसेस हमें करना है आगे चल. नाउ अगर मेरे यहाँ पे आइटम चारों प्रोसेस हो गए, 4 5 जितने भी है, 100 है फॉर एग्जाम्पल, तो वो प्रोसेस हो गए, हमें कैसे पता चलेगा. वो तो वेट करता रहेगा ना हर बार, वो एरर दे देगा मुझे कि नो मोर आइटम्स एंड ऑल. तो यहाँ पे आई विल बी यूजिंग अ कंडीशन ओवर देयर. अगर इफ माय ट्रैन आइटम इज, अगर मेरा ट्रैन आइटम इज बिन ट्रैन आइटम अगर इज नॉट नथिंग. मैंने आपको बताया था गाइस, ट्रैन आइटम इज नथिंग मींस ट्रैन आइटम कुछ नहीं है, इट इज नल, जीरो, खत्म, नाडा. ठीक है, सो इट विल बी डूइंग समथिंग. बट अगर यहाँ लिखा है ट्रैन आइटम इज नॉट नथिंग मींस इट इज इन्वर्सिंग दैट कंडीशन ओवर देयर. तो क्या है, ट्रैन आइटम इज नथिंग, so it is inversing that condition. मतलब 10 item is nothing, is not nothing means 10 item is something. तो अगर 10 item कुछ है तो वो ये प्रोसेस होगा, अगर 10 item कुछ नहीं है मतलब हमारा प्रोसेस क्या है, एंड सब खत्म हो चुके ट्रांजेक्शंस, तो एल्स में जाएगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो यहाँ पे आई विल बी यूजिंग अ टर्मिनेट वर्कफ्लो एक्टिविटी ओवर देयर यहाँ पे, एंड आई विल बी यूजिंग नो मोर ट्रांजैक्शंस. ठीक है, नो मोर ट्रांजैक्शन विल बी देयर. तो ऐसे कर देते हैं टू प्रोसेस, simple as it is. Processing data, get transaction item, it will be procuring the transactions from here, and ट्रैन item is not nothing means ट्रैन item is something. अगर वो है तो जो भी मेरी एक्टिविटी यहाँ पे आएंगी वो यहाँ इसके अंदर कॉल होगी अपना. ठीक है, चलिए
अब अगर मेरा 10 आइटम कुछ है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी फर्स्ट यूजिंग अ मल्टीपल असाइन ओवर देयर। ठीक है, मैं मल्टीपल असाइन क्या करूंगा यहाँ पे वैल्यूज को, 10 आइटम डॉट स्पेसिफिक कंटेंट फर्स्ट नेम। ठीक है, and I'll be creating a variable over there because we don't need any argument, we just need a variable because we don't want to pass the data from one workflow to another. First name only content, अच्छा कुछ जाती मैं जल्दीबाजी में कुछ गलत डाल दिया, फर्स्ट स्पेस नहीं होगा सर, माय बैड। ठीक है, तो ऐसे ही करके मुझे जितने 7 आपके कॉलम्स हैं, 7 आपके जो 10 आइटम में डेटा है उनका मुझे नाम ले लेना है, यहाँ पे लिख देना है, आई विल बी बैक विद इन अ सेकेंड। Okay, so I have made all the 7 variables over there which is containing all the data from the transaction item. ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10 item first name, everything is there, you can see लास्ट टाइम। यहाँ सिटी में आप सोच रहे हो मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने सिटी ही लिखा है क्योंकि मेरी जो क्यू के अंदर डेटा है उसकी जो की है दैट इज कॉल्ड एज सिटी की। सिटी में कॉल करूंगा की वैल्यू तो मुझे वैल्यू मिलेगी वहां पे जो भी एक्सपायरी सिटी होगी उस टाइम पे जो इटरेशन पे चल रहा होगा, एज एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका डिपेंडेंस होता है। ठीक है, राइट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। चलिए ठीक है, देन का ये मेरा पार्ट क्लियर है, मल्टीपल असाइन इज डन। अच्छा, अब असाइन तो हो गया, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे डेटा को फीड करना है इनसाइड द फॉर्म। सो टू दैट विल बी यूजिंग अ यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी एंड ओवर हियर आई विल बी मेंशनिंग दिस पार्ट, बैंक अकाउंट वाले पार्ट को मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, एंड बस इसके अंदर क्या करना है मुझे यहाँ पे क्लोज करना है नेवर। आई जस्ट बी टाइपिंग इनटू 7 एक्टिविटीज ओवर देयर, यहाँ 7 एक्टिविटीज हम टाइप करेंगे। फर्स्ट नेम फर्स्ट लाइक दिस str फर्स्ट नेम ओवर देयर। ठीक है, एंड यहाँ आ जाएगा आपका टाइप इनटू लास्ट नेम, राइट, str last name and over here type into city. See, it is automatically taking the anchors over there because we are using the modern design and all. ठीक है, so we don't need to, अगर हमारे मॉडर्न डिजाइन अवेलेबल नहीं होता तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती, देन वी हैव टू क्रिएट द सेलेक्टर्स ओवर देयर। सो मैं सेलेक्टर्स को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, वी हैव दिस फिजिबिलिटी नाउ। UiPath इज वेरी मच इनटू APA और एजेंटिक प्रोसेस ऑटोमेशन दीस डेज। ठीक है, ईमेल type into H, yeah, and the last part will be the dependents number of dependents, sorry। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ H। ठीक है, सब मैंने डाल दिया है, फोन सिटी है लास्ट में। ठीक है, वी ऑल्सो नीड अ क्लिक ओवर देयर, so just say add account, okay, it's done now। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है, देयर इज अ पॉपअप आल्सो कमिंग एवरी टाइम। सो जब वो पॉपअप आता है हमें जस्ट उस पर क्लिक करना है, आप एस्केप भी दबा सकते हो कीबोर्ड से, तो आई थिंक द बेटर वे टू यूज इट ओवर हियर इज द एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, लेट्स ट्राई। अगर वो नहीं काम करेगी तो विल बी सीइंग सम अदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही है, विल बी सीइंग एस्केप, गॉट इट। एंड ये मेरा रिपीट होगा अगेन, आगे जाके इसको रिपीट करवाएंगे, अभी रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरा पार्ट हो गया डन, इट इज फिलिंग अप द फॉर्म ओवर देयर, डन। अब एक्सेप्शन की बात आती है। अब यहाँ पे अगर सिस्टम एक्सेप्शन आता है तो वो क्या होगा, उसको रिट्राई करेगा पूरे डेटा को। तो वो कैसे रिट्राई करेगा बताते हैं आपको। देखिए, जो मेरा ये जो आपका जो पूरा का पूरा ये कंडीशन है, ये वाली, ये आपका हो गया और ये हो गया, इन दोनों को what I can do, I can put it inside a sequence, I can just put it inside a sequence over there like this, and इस पूरी सीक्वेंस को मैं डाल सकता हूं आपका ट्राई कैच के अंदर। ठीक है,
ये मेरी पूरी की पूरी सीक्वेंस है वो आपका ट्राई कैच के अंदर आ जाएगी प्रॉपर। यहाँ पे इसको नाम भी देता हूँ प्रोसेस लाइक दिस, ठीक है। तो अब कोई इस पे एरर आता है तो इट विल बी कैच ओवर हियर, कैच पे हमारा आ जाएगा, हम उसे हैंडल कर सकते हैं कैच पे, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यूज एप्लीकेशन ब्राउज़र में सब कुछ कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये हो जाता है सक्सेसफुल तो व्हाट इट विल बी द केस विल बी दैट मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो टू शो इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर वी हैव टू यूज एन एक्टिविटी कॉल्ड सेट ट्रान स्टेटस, जो आपको पता है मैंने लास्ट पार्ट में यूज की थी। अब डिटेल हमने प्रोसेस का डिस्कस किया है, प्लीज डोंट से कि आपको नहीं पता है, बिकॉज हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तभी, यहाँ पे क्या है सक्सेसफुल में दे रहा हूं, अगर सक्सेसफुल होता है तब, ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर हमने पोस्ट ट्राई में कुछ डाला है तो कैच पे एक कुछ डालना तो पड़ेगा, वी नीड एटलीस्ट वन कैच, राइट। सो आई बी गोइंग ओवर हियर एंड सिस्टम डॉट एक्सेप्शन मैंने आपको बताया इट्स अ जनरलाइज्ड वे ऑफ कैचिंग द एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन आ गया है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो कैच कर लेगा आपके एक्सेप्शन को आके, ठीक है। अब बट टू ऐड एन एक्सेप्शन व्हाट आई कैन डू, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बताता हूँ। हमने मल्टीपल असाइन करके हमने वेरिएबल्स असाइन कर दिए ट्रांजेक्शन आइटम से, हमने यहाँ पे अपना डेटा फीड भी करा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुल कर दिया, बट अगर किसी वजह से ये बंद हो जाता है पूरा, मतलब पूरा प्रोसेस बट इट डज क्लोज, बंद हो जाता है या कुछ एरर आए थे साइड पे, तो बट तो मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है, सक्सेसफुल नहीं होगा, मतलब इट विल बी व्हाट, इट विल बी फेल्ड ओवर देयर। इन दैट सिनेरियो द सक्सेसफुल प्रोसेस वोंट बी सक्सेसफुल बट इट विल बी फेल्ड। तो हम क्या करेंगे, कैच के अंदर आई कैन यूज अ सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस ओवर देयर, डेव ट्रांजेक्शन आइटम विल बी द सेम ट्रान आइटम, बट यहाँ पे इस बार मैं डाल दूंगा फेल, ठीक है। एंड हमें जो रिट्राई भी करवाना है तो व्हाट आई कैन डू इट एज एप्लीकेशन एक्सेप्शन और ऐप एक्सेप्शन, सिस्टम एक्सेप्शन, एंड आई कैन से दैट crashed like this, ठीक है। ऐसे करके हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। so this my block whole block is completed, ठीक है। ये डेटा मेरा पूरा यहाँ पे होता है complete। I'll go inside the main, यहाँ पे I'll just add a flowchart over there, यहाँ मेरा flowchart आ जाएगा, flowchart ये है, ठीक है। तो ये मेरे फ्लो आ गया है, फ्लो आपका आ गया है यहाँ स्टार्ट से। तो सी जब मेरा फ्लो स्टार्ट होगा, फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, फ्लो स्टार्ट होगा फ्लो चार्ट के अंदर जाके, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यूजर को बताना चाहता हूँ कि मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड माय प्रोसेस, टू डू दैट आई यूज अ लॉग मैसेज एक्टिविटी, ठीक है। आई से प्रोसेस स्टार्ट लाइक दिस, बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हमें काउंट भी करना है कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन से एंड द transaction number is, I can quickly create a variable over there int underscore counter, ठीक है। ये भी मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल होगा यहाँ पे, आई जस्ट ऐड इट ओवर देयर, क्या हुआ प्लस इट इज नॉट डिक्लेयर्ड और व्हाट, प्रोसेस स्टार्टेड द ट्रांजैक्शन इंट इतना इतना काउंटर सिक प्रोहिबिट टाइप ऑफ कन्वर्जन फॉर द ऑपरेटर। अच्छा, आई थिंक मैंने इसको भी ऐड कर दिया आपके इसमें जाके ऑब्जेक्ट होते हैं int 32। देखिए मैं बनाऊंगा इंटीजर का काउंटर बिकॉज मुझे उसे इंक्रीमेंट भी करना है ऑन एवरी सक्सेसफुल रन। सो यहाँ इसकी वैल्यू होगी 1, स्टार्टिंग है 1 रखो, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ओवर हियर आई विल डू, मैं इसको प्लस करूंगा एंड आई विल बी यूजिंग इंट काउंटर, बट आई विल बी व्हाट कन्वर्टिंग इट टू स्ट्रिंग ओवर देयर बिकॉज इट विल बी एक्सपेक्टिंग अ होल सेम डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। जो भी डेटा ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, ये भी स्ट्रिंग होना, तभी वो उसे एक्सेप्ट करेगा। इट दिस इज काइंड ये स्ट्रिंग है, ये आपका एरे वेरिएबल है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट शुडंट बी लाइक दिस। तो ये मेरा लॉग मैसेज आ गया है, आई विल जस्ट रीनेम इट, सो प्रोसेस स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। अब जब मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा तो व्हाट इट विल बी, आई विल बी जस्ट क्विकली डूइंग ओवर हियर लाइक दिस, इन्वोकिंग माय XAML, ठीक है। मैं अपनी कर दूंगा XAML यहाँ पे, तो ये मेरा पूरा प्रोसेस कर देगा एंड आफ्टर दैट
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आई विल बी पब्लिशिंग माई प्रोसेस इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर एज वेल। ठीक है, अब मुझे सेफली वहां से भी एग्जिट करना है। देयर इज एन एक्टिविटी ओवर हेयर इनसाइड द स्टूडियो कॉल्ड should stop activity, and it is used in tandem with the orchestrator to safely exit your processes, to kill, not to kill your jobs. Kill is a different thing. Should stop will be safely exiting. देखिए, checks if stop was triggered in the orchestrator will be stopping your process, not killing your process. ठीक है, it is also giving out a boolean variable over there, or yes or no. So bool as a stop like this. ठीक है, ये है। अब देखिए, whenever you are using a flow chart there is an activity called flow decision over there। ठीक है, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा। इट्स जस्ट लाइक एन इफ कंडीशन इन द नॉर्मल सीक्वेंस, दिस इज ए फ्लो चार्ट, सो वी हैव अ फ्लो डिसीजन ओवर देयर। यस तो ये रो पूरी आएगी आपकी, राइट। नो होगा तो ये रो पूरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक, सो यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन में डालूंगा आपकी बूल स्टॉप। देखिए, अगर मेरा बूल स्टॉप यस होता है मतलब दिस इज अ ट्रू, सो मेरा इस पार्ट में जाएगा, नहीं तो फॉल्स होगा तो इस पार्ट पे जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे आई विल बी logging a message again just to letting the user know that what is the status now। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं लॉग करूंगा, मतलब लॉग कब ट्रू कब होगा मेरा प्रोसेस, जब फुल बुल स्टॉप ट्रू हो जाएगा। बुल स्टॉप ट्रू कब होगा, जब मैं ऑर्केस्ट्रेटर उसको स्टॉप करूंगा। ठीक है, तो आई विल से ऑर्केस्ट्रेटर स्टॉप लाइक दिस, एंड यहाँ मैं लिख दूंगा process was stopped from orchestrator like this, cool। and from main I'll go again to the main side। देखिए, was stopped again from the org, यहाँ मैं stop कर दूंगा इसको, but अगर मेरा प्रोसेस क्या स्टॉप नहीं होता है, it will be also continuing। I'll be using a log message again। ठीक है, खत्म होने के बाद continuing like this, and over here process is picking up next transaction, right, cool। ठीक है, and how it will be picking up आपको बताते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना, अब जब ये सेकंड टाइम पिक करेगा तो इसका काउंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज हमने यहाँ पे एक काउंटर डिफाइन किया हुआ, एंड काउंटर। तो दिस इज टाइप ऑफ इंटीजर काउंटर एंड इट विल बी इंक्रीमेंटिंग ऑन एवरी गो, सो वी हैव टू आल्सो डिवाइस अ इंक्रीमेंटिंग मैकेनिज्म ओवर देयर, जैसे हमें बोला गया है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट यूजिंग एन असाइन एक्टिविटी ओवर हियर। आई विल बी यूजिंग एन असाइन एक्टिविटी लाइक दिस यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूं इंक्रीमेंटिंग काउंटर। तो द काउंटर इज इंट काउंटर प्लस वन टाइम्स हमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एंड काउंटर विल बी द वेरिएबल। दैट्स व्हाई आई यूज द इंटीजर, बिकॉज आई हैव टू इंक्रीमेंट द काउंटर एज वेल। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट किया काउंटर को, तो मेरा अब 1 हो गया, दोबारा से क्या हो गया, यहाँ पे 1 का 2 हो गया, सॉरी। अब ये क्या जाएगा, यहां से अगेन इट विल बी गोइंग टू over here, because see we are telling the user that the counter has been incremented। तो यहाँ पे हो रहा है इंक्रीमेंट आपका काउंटर, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके चले जाए। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आई थिंक इट्स प्रिटी मच क्लियर, वेरी इजी एज वेल। नाउ इट्स बेटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट हुआ, मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 1 यहाँ पे नंबर आएगा। वन मोर थिंग, आई लाइक टू हाईलाइट इट टू 1 बिकॉज एक रेड सा इंडिकेशन आएगी। इट विल बी बेटर टू लेटिंग द यूजर नो दैट द प्रोसेस ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मेरा स्टार्ट हुआ, यहाँ पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर मेरा स्टार्ट खत्म होता है, यहाँ प्रोसेस स्टॉप करता हूँ ऑर्केस्ट्रेटर से, इट विल बी थ्रोइंग एन एरर ओवर देयर, सॉरी अब बूल फॉल्स होगा, सो बूल यस होगा, तो यहाँ जाके से खत्म कर देगा, सिंपल एज इट इज। बट अगर ये नहीं है, मतलब अगर फॉल्स है,
कुछ नहीं है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली इट विल बी गोइंग ओवर हियर, रनिंग इट अगेन, डूइंग दिस पार्ट ओवर देयर लाइक दिस। ठीक है, चलिए, सो लेट्स ट्राई टू रन इट फर्स्ट ओवर देयर। अभी हमने इसको रन नहीं किया है, तो आई विल बी रनिंग इट फर्स्ट here only. Let's see what is the output of our process over there. Just processing now the data, everything. देखिए process started and the transaction number is 1, उसने वहाँ लिख दिया है पूरा। I think it should be processing something. Yep, it's processing it. अच्छा, आई थिंक फोन में भी हमने वही लिख दिया है गलती से, माय बैड, सेकंड। That's why testing is very much important of the city, phone, emails. There was what city, Los Angeles, 1 second, city is city, str underscore phone is phone. What is the issue over there? Phone is phone, okay. City is city again. And इसको एक काम करते हैं, let's quickly try to debug it from here, try to run it again. ठीक है, तो now I'll see str locals पे देख लेते हैं, way more faster. अच्छा, दोनों यही आ रहा है ना, फोन नंबर इज नॉट पिक्ड, ठीक है। फोन एंड सिटी में यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। आई थिंक वी हैव पिक्ड समथिंग रॉन्ग ओवर देयर, बिकॉज देखिए फोन भी आपका वही आ रहा है और सिटी भी आपकी क्या है, वही आ रही है। तो वी हैव टू सर्च इनसाइड द क्यू। आई थिंक क्यू में कुछ प्रॉब्लम है हमारी। रिफ्रेश, थर्ड ट्रांजैक्शन इज देयर, या देखिए सिटी यही है और फोन भी तो है। डिस्पैचर ने गलत हमने यहाँ पे इसको पुश किया है। I'll just stop the process over there because I thought that हमने वहाँ पे राइट लिया, बट आई थिंक कुछ गलती हो गई हमसे यहाँ पे। आई नो what is the issue over there, so once I'll just dispatch it again, don't worry. Create a new queue, Acme, and it will be 2, add it, ठीक है। I'll save everything, go to the dispatcher, correct the sequence over there, देखते हैं कैसे। ठीक है, ये है ये तो सिटी एंड फोन ना। हाँ देखिए, फोन में भी यहाँ मैंने ये डाल दिया है, सिटी भी ये डाल दिया गलती से। सो फोन will be this, city, phone, email, age, number of dependents, everything was correct except the city and the phone. ठीक है, now it will be done. Just debug it again. It has successfully added it again. Performer, refresh it. यहाँ आप देख सकते हैं इस बार फोन नंबर आया होगा डेफिनेटली। या वी हैव द फोन नंबर, सिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एज, बट नाउ इट इज परफेक्टली राइट ओवर देयर। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं रिफ्रेश, रन इट अगेन एंड लेट्स सी नाउ। अच्छा, वी हैव अ दिस ना ब्रेक पॉइंट, तो ये मैं कहूँ ये रुका क्यों है मेरा प्रोग्राम। नो इश्यूज। Account was created, I used the keyboard shortcut but I think it was not taking it. Add account पे नहीं हुआ यहाँ पे सक्सेसफुल। It clicked on add account but I think इसने यहाँ पे पूरी तरह नहीं किया है। तो let's do one thing, let's quickly close it like this. यहाँ पे what we can do, we can go inside the target, we can go for visibility check, interactive school, ठीक है। Page was loaded by default, no issues, native text, page for activate is also true, input mode is this, ng modifier definitely no.
I can do complete and visibility check will be fully visible. And what I can do, I can just use a strict selector for this part. ठीक है, इसके लिए हम strict selector यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे. Don't need any computer vision for this. ठीक है, validated. It's perfectly 100% score. And now it won't be throwing us any error. Let's see now. ठीक है, चलिए refresh it again. You see, if you will not be testing your workflows ना, तो आपको टेस्टिंग, आपको डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत आने वाली है. यू शुड ऑलवेज टेस्ट माइन्यूट वर्कफ्लोस हमेशा. हमें नहीं की जल्दीबाजी में, बट ठीक है, वी शुड बी डूइंग इट एवरी टाइम. अब कर रहे हैं हम लोग एक साथ, तो ये हमें करना चाहिए था ऐड अकाउंट वाला. इट क्लिक्ड ऑन इट, एंड अगेन व्हाट इज पेंडिंग फ्रॉम इट साइड, अगेन वही हो रहा है इसमें. ओके, 1 सेकेंड. ओके, सो गाइज आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दैट हमने यहाँ पे कैसे किया है, हाउ वी हैव प्रोग्रेस थ्रू दिस ऑटोमेशन ओवर देयर, राइट. तो लेट्स क्विकली रन इट एंड सी दैट इट्स वर्किंग और नॉट. ठीक है, चलिए आई जस्ट पहले तो मैं इसको 140 कर देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैंने नहीं किया था. रियली सॉरी अबाउट दैट. सम पीपल हैव सेड दैट आपका जूम आउट बहुत रहता है. लेट्स सी, ये आपका जूम इन हो गया गाइज, नो वरीज, टेंशन खत्म. ठीक है, इसको हम करते हैं डीबग. इट्स ओपन द बैंक, योर बैंक अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना बताता हूँ. वो जैसे ही क्लिक कर रहा है ना, आपका एक्मे वॉस अकाउंट वॉज क्रिएटेड बॉक्स आ जा रहा है. तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इट वेंट ऑफ. ये क्या हो रहा है कि इधर आई हैव टू लेसन द डिफॉल्ट टाइम ओवर देयर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 आइटम्स मेरे डन हैं. 2 आइटम्स क्या हैं, मेरे डन हो गए हैं. अब इसको मैं बीच में कर देता हूँ बंद, जस्ट टू क्रिएट अ सिस्टम एक्सेप्शन ओवर देयर. ठीक है, मेरा ये साइट बंद हो गई है, एवरीथिंग इज क्लोज नाउ. एंड ये जो मेरा प्रोसेस है दैट इज ओवर हियर 140. ठीक है, अब ये मेरा देखिए कहाँ पे है, इट इज इनसाइड द ट्राई पार्ट ओवर देयर. ये मेरे ट्राई पार्ट पे था, बट द मेन थिंग इज अब ये जाएगा डायरेक्टली इन द कैच, एंड यहाँ पे इट इज ऑटोमेटिकली क्रैश्ड. अब जैसे ही क्रैश मेरा स्टेटस पे है, एंड अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी 1 2 3 4, ये 5th आइटम था, दोनों को मिला के 5th था. तो क्या था कि एक तो मेरा 6 यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अब क्या है, ये मेरा एक आइटम रिट्राई हुआ है. यहाँ पे रिट्राई क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा रीजन था, इट गॉट क्रैश्ड, सिंपल एज इट इज. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे. So now, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जाएगा ऑटोमेटिकली, इट विल गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, इट हैज पिक्ड द न्यू ट्रांजैक्शन. अगेन उसने वो खोला यहाँ पे, अगेन इट रिट्राइड इट अगेन. सॉरी, इट रिट्राई नहीं किया उसने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिया यहाँ पे. इट हैजंट रिट्राइड इट नाउ. अब मैं इसको यहाँ पे जस्ट इसको अपने प्रोसेस को हम रन करवा रहे हैं फिर से. इसके बाद को ट्रांजैक्शन होगा, विल अगेन क्लोज इट, एंड अगेन विल सी दैट वो लास्ट में जाके रिट्राई करता है कि नहीं करता. ठीक है, लेट्स रिमेंबर द नेम डोरोथी सोलिस. ठीक है, आई एम क्लोजिंग इट अगेन. अब मैंने इसको बंद कर दिया. बीच में मेरा जो ये था, क्या कहते, इट क्रैश्ड. ठीक है, क्रैश हो गया. रिफ्रेश भी करते रहे साइड बाय साइड. इन प्रोग्रेस है, सक्सेसफुल यहाँ पे 2 है, 2 पिक नहीं हुए हैं ट्रांजेक्शन अभी. ठीक है, तो यू कैन सी अभी इट इज सर्चिंग फॉर दिस एज. उसको एज नहीं मिला बिकॉज मेरे ये पैनल ही ऑटोमेटिक बंद हो गया है, इट हैज क्लोज्ड. ठीक है, 2 बार हमने किया है. एक बार पहले था, वो रिट्राई अभी लास्ट में होगा, इट विल बी रिट्राई एट द एंड. ठीक है, कंटिन्यू. नाउ अगेन इट इज ओपनिंग एना ब्रिग्स. अब देखते हैं गाइस, वो डोरोथी सोलिस वाला जो हमारा यूजर नेम है वो कब आता है. इट विल बी कमिंग इन द लास्ट. ठीक है, चलिए, I'll see in the queue as well. Refresh it.
यहाँ पे 2 बार हमारा रिट्राई हुआ है, एक इन प्रोग्रेस है, एक और लास्ट आइटम टू बी पिक्ड, इट इज येट टू बी पिक्ड. इट डिडंट टाइप दिस वन क्योंकि वो, देखिए यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ गाइस. द मेन थिंग, मेन प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट, हाँ देखिए आ गया ना डोरोथी सॉलिस अगेन. तो व्हाट इट रिट्राइड इट अगेन, उसने वो आइटम को दोबारा से रिट्राई किया है ऑटोमेटिकली. वहां पे इट रिट्राइड दैट स्पेसिफिक यू कैन से क्यू आइटम और ट्रांजैक्शन आइटम. ठीक है. नाउ इट इज थ्रोइंग एस एन एरर, इट्स सेइंग दैट नो मोर ट्रांजेक्शन्स टू प्रोसेस ओवर देयर. तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बिकॉज मेरा टर्मिनेट वर्कफ्लो काम कर गया है. तो इट हैज कंप्लीटेड दिस, नो मोर ट्रांजेक्शन्स टू प्रोसेस, टर्मिनेट वर्कफ्लो, दिस इज इट. ठीक है. अब इसको हम रन करते हैं आपको ऑर्केस्ट्रेटर से, बिकॉज दे हैव गिवन अस टू रन द टास्क फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर, सो विल बी रनिंग इट थ्रू द हेल्प ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर. ठीक है. यहाँ पे दो आपका रिट्राई है जो कि सी 1 2 3 4 5. हमारी ट्रांजेक्शन्स कितने थे, 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन्स वन देयर. उसमें से हमने 1 2 3 4 5 पांचों के पांच सक्सेसफुल हैं, लेकिन उसमें से क्या है, दो रिट्राई हुए हैं. यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे हैव रिट्राइड इट अगेन एंड अगेन. रिट्राई था बट बाद में सक्सेसफुल भी हुआ. यू कैन सी द काउंटर नंबर, फर्स्ट वॉज 0, सेकेंड वॉज 1. ठीक है. एंड ये भी देख लेंगे अगर हम रिट्राई का, सो इट इज शोइंग ओवर हियर एज रिट्राई 0 बट इट इज सक्सेसफुल नाउ. ठीक है. ऑब्वियसली रिट्राई पहले होगा और सक्सेसफुल बाद में हुआ है, तो इट इज द न्यूअर टाइम ओवर देयर. गॉट इट गाइस. चलिए. Now let's quickly delete it again and do this whole process again with the help of a orchestrator. So I hope this is very easy guys, but the main thing is आपको समझ में आना चाहिए that हम क्या यहाँ पे करना चाह रहे हैं. So I hope that you guys get the gist of it. ठीक है. Add, and again I will be running the dispatcher. आई होप डिस्पैचर परफॉर्मर आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पे वन इज पॉपुलेटिंग द क्यू, अदर इज परफॉर्मिंग अ डेटा, परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द क्यू बाय गेटिंग द सिंगल ट्रांजेक्शन आइटम एट अ टाइम. ठीक है. चलिए. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू पब्लिश द प्रोसेस. सेकंड, बिफोर पब्लिशिंग एज आई सेड आई विल बी reducing the this time. Let's talk it to 3 seconds. और let's take it to 2 seconds. Let's see. ठीक है. चलिए. Element to appear and let's quickly save it, publish it, publish. It is now publishing the automation inside this, and the workflow version is 1.0.1. We'll be going inside the folder automations, right? I'll be going add a process, and now we can see chapter 98 performer. It is next, right? Next it is same name, and let's quickly create it. ठीक है. Close chapter 98 performer. I'll just press on the play button. Any robot हम यूएससी कर सकते हैं बिकॉज अभी हमारे पास यही अकाउंट है, बट चलिए फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस ये ले लेते हैं हम लोग. 1 अवेलेबल है, 1 कनेक्टेड है. फोरग्राउंड एक्टिविटी, बैकग्राउंड एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी गाइस. बैकग्राउंड कितने भी चल सकते हैं, फोरग्राउंड एक टाइम पे एक ही चलेगा. ठीक है. एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग द प्रोसेस ओवर देयर. चलिए. Now it is running. You can see it is running successfully. ठीक है. गैरी अंडरवुड न्यूयॉर्क 555, इसको मैं बीच में, इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. ठीक है. चलिए. It again opened it. I must say it's pretty faster when you're running it through the orchestrator rather than you're running it through the studio, right?
So Gary, I think Gary will be retried at the end. Dorosis Solis हमने देख लिया था, it will be retried as again. पहले अभी नहीं होगा, अभी हम कुछ छेड़ नहीं रहे, it is automatically doing its thing, right? देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, द बॉक्स, ये जो बॉक्स यहाँ पे आ रहा है एक्मे टेस्ट UiPath.com, इट इज नाउ डिसअपियरिंग मच मोर फास्ट. इसको भी हम रिट्राई करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है. चलिए इसके हम लॉग्स यहाँ पे देखेंगे, सीइंग द लॉग्स एज वेल वो देयर. ट्रांजैक्शन स्टार्टेड, ट्रांजैक्शन एंडेड, 1 2 3 4 5, 2 ट्रांजैक्शन विल बी मोर ओवर देयर. यहाँ पे 4 पूरी मिला के आई थिंक 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन यहाँ पे और होंगे, ठीक है. Now it opened again. Anna Briggs. Okay. So over here in the orchestrator, if I'll refresh it, you can see the transactions were 7 because अपने 2 टाइम उसको retry किया था. देखिए invoke workflow file, no more transactions to process, no transaction data available for now. ठीक है, I'll go inside the queue, I'll go inside the view transactions and यहाँ पे आप देख सकते हो दैट एक मेरा ये जो ट्रांजैक्शन है इट वाज बीइंग रिट्राइड ओवर देयर. एक ये रिट्राई का भी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको रिट्राई किया गया बट इट वाज सक्सेसफुल. ठीक है, ये सक्सेसफुल रहा. सो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट हाउ वी हैव अचीव्ड दिस यूजिंग ऑर्केस्ट्रेटर, यूजिंग क्यू, यूजिंग रिट्राई मैकेनिज्म, एवरीथिंग. ठीक है, इफ नहीं आया प्लीज मेक दिस प्रोसेस ऑन योर ओन. आई बेट यू एंड आई एश्योर यू आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, अगर नहीं आए तब भी आस्क मी इन द कमेंट्स, एनीथिंग, एनी टाइम, एनी डे. ठीक है, चलिए. सो वन सेकेंड, आई थिंक वी आर येट टू क्लोज दिस पार्ट. वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस ओवर देयर. ठीक है, हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे. यू कैन सी ऑल्सो द डेमो इन्होंने बनाया, ये भी सेम है. ठीक है, इट्स प्रीटी मच द सेम एज वेल. आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट. ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए अगर मैं व्हाट आई विल डू, अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आई थिंक रह गया है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. quickly let's go here, queues, quickly remove this queue. ठीक है, now I'll run it again. Acme desktop. अच्छा अभी तो बनाया था, नहीं बना. अच्छा बनाया नहीं, भी डिलीटेड इट, सॉरी माय बैड. Okay, now the data has been fetched inside the queue, but the main thing is अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं आपका automations के अंदर जाके I'll just run it from here. Computer this start it, but now I'll do it like this. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब मैं इसे स्टॉप कर दूंगा बीच में. ठीक है, देखिए चल रहा है प्रोसेस, मेरा ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, बट द मेन थिंग इज आई स्टॉप इट इन बिटवीन. सो इट इज नाउ व्हाट, इट इज स्टॉपिंग इट. मेरा प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो रहा है. अब आप देखिए लॉग्स देखिएगा, यहाँ पे लॉग्स आएंगे आपके पास बन के. ठीक है, तो यू विल सी द लॉग्स. प्रोसेस वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर. तो यू कैन सी दैट हमारा क्या है, प्रोसेस सेफली बंद हो गया था फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर. शुड स्टॉप वेरिएबल वाज ट्रू एंड व्हेन इट वाज ट्रू इट वेंट टू द ब्रांच वेयर इट वाज रिटन प्रोसेस वाज स्टॉप फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर. उसके आगे प्रोसेस नहीं चलेगा. दिस इज द वे टू सेफली स्टॉप योर प्रोसेस फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर एज वेल. इफ यू किल इट, वो
जो आपकी एप्लीकेशन है इट कैन प्रोड्यूस सम डिफरेंट टाइप ऑफ एरर एज वेल. इट्स नॉट रिकमेंडेड. इट्स रिकमेंडेड टू यूज द should stop activity, then stop it. Your process will be stopping correctly and safely as well. After that specific transaction will be done, it will be coming to the should stop activity. It will be checking if it's yes or no. If it's yes, it will go to the branch where it was be throwing the true value of the should stop activity, and whatever the process that you have told after that, it will be executed like that. ठीक है. चलिए, आई होप दैट गाइज ये आपको समझ में आया होगा पूरा हाउ वी हैव डन दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ क्यू, orchestrator, auto retry function, and should stop activity as well. If you have any doubts, please feel free to ask me in the comments. Next part, we'll be seeing what are the different type of flows, workflows available in the UI path. कैसे हम उसको आगे यूज करेंगे, what is the core difference between all these 3 or 4 workflows जितने भी हैं हमारे पास, we'll be seeing it inside in the next video. चलिए guys, thank you so much, happy automation, and as always keep learning.